slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant, modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. सुरेश कुमार दिखता चावला झूठ करे बढ़ाई बेटा से सोचो शहर में पानी खातर प्याऊ भी लगाए रे। दीन दुखी के बाल किसने बिल्कुल फ्री पढ़ाए रे। दीन दुखी के बाल किसने बिल्कुल फ्री पढ़ाए रे। सतबीर सिंह का छोरा मारी आन बान शान रे। सतबीर सिंह का छोरा मारी आन बान शान रे। नौर की ओ शान रे। देवेंद्र का ध्यान रे। देवेंद्र का ध्यान रे। देवेंद्र का ध्यान रे। गाम शहर जड़ साफ मिले रे। खंड के आली खाप मिले रे। देवेंद्र खुद मारा आप मिले रे। समझ लियो गन्नौर से ना लाला कोई लारा रे। जड़ छत्ती जात भाईचारा रे। जो विकसित सारे का सारा रे। तो समझ लियो गन्नौर से गाम शहर जड़ साफ मिले रे। खंड के आली खाप मिले। देवेंद्र खुद मारा
आप मिला रे समझ लियो गन्नौर से। दुख उसने यो मेटा सबका भर दे अंडी पेटा सबका नेता ना यो बेटा सबका समझ लियो गन्नौर से। काम के काम मिले बस दे के बालक बूढ़े रहे हंस दे घर के घर पावे चस दे यो समझ लियो गन्नौर से। काम शहर जड़ साफ मिले रे खंड के आड़ी खाप मिले देवेंद्र खुद मारा आप मिले रे समझ लियो गन्नौर से। दुख उसने यो मेटा सबका भर दे अंडी पेटा सबका नेता ना यो बेटा सबका समझ लियो गन्नौर से। काम के काम मिले बस दे के बालक बूढ़े रहे हंस दे घर के घर पावे चस दे यो समझ लियो गन्नौर से। काम शहर जड़ साफ मिले रे खंड के आड़ी खाप मिले देवेंद्र खुद मारा आप मिले रे समझ लियो गन्नौर से। जड़ सारे जड़िया का प्यार मिला रे हरे भरे घर बार मिला रे देवेंद्र की सरकार मिला रे समझ लियो गन्नौर से। खंड क्या किया चौतर पाव नशे पते का दौर नया वह पापा जिंदे के शीश झुकावे समझ लियो गन्नौर से। काम शहर जड़ साफ मिला रे खंड के आड़ी खाप मिला देवेंद्र खुद मारा आप मिला रे समझ लियो गन्नौर से। जड़ सारे जड़िया का प्यार मिला रे हरे भरे घर बार मिला रे देवेंद्र की सरकार मिला रे समझ लियो गन्नौर से। खंड क्या किया चौतर पाव नशे पते का दौर नया वह पापा जिंदे के शीश झुकावे समझ लियो गन्नौर से। काम शहर जड़ साफ मिले रे खंड के आड़ी खाप मिले देवेंद्र खुद मारा आप मिले रे समझ लियो गन्नौर से। ओ देवेंद्र का दस ले तो छारा पे थारे के विकास के पत्र पे गन्नौर ने लारा थारे के हो जा भला गरीबा एक रोल देवेंद्र का हो चमके गन्नौर का क्षेत्र योग फूल देवेंद्र का हो चमके गन्नौर का क्षेत्र योग फूल देवेंद्र का। ओ देवेंद्र यो नेता कोनी बेटा मारा से एम्बुलेंस की सेवा रिक्शा फरी चला जाता है और फूल देवेंद्र का अरे चमके गन्नौर का क्षेत्र यो वसूल देवेंद्र का अरे चमके गन्नौर का क्षेत्र यो वसूल देवेंद्र का। देवेंद्र घटना चले थे वो आम जन की खतरे अपने जिम भी चले थे वो पैदल समर्पणों के चक्के जता दो छोरे ने और पंचम से आगे शिखर तका दो छोरे ने। अच्छल कपट से नेचर पे तो फूल देवेंद्र का अरे चमके गन्नौर का क्षेत्र यो वसूल देवेंद्र का चमके गन्नौर का क्षेत्र यो वसूल देवेंद्र का। अपना की गणी ख्यात देवेंद्र प्यारा है हो भल जा बीत के मारा ऐच से खड़े चढ़ा याद किचन पार अभी जो आपने अपने बेटे अपने भाई को इतना प्यार दिया, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाएं। जो प्यार जो समर्थन आप सभी ने दिया है, ये प्यार ये आशीर्वाद इस समाज सेवी के लिए ताकत बनेगा, ऊर्जा बनेगा और ये ताकत ये ऊर्जा इस गन्नौर के विकास में लगेगी, आप सबके विकास में लगेगी। एक बार और जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला बढ़ाएं। अभी मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, थोड़ी सी हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना, एक बार मंच की भी थोड़ी सी व्यवस्था बनाएं। समय भी ज्यादा हो चुका है ताकि इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे।
एक बार थोड़ी सी मंच की व्यवस्था बनाए, और सामने जो साथी खड़े इनसे भी मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, पीछे हमारे कुछ पिता तुल्य बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी मातृशक्ति बैठी है, उनको भी दिक्कत ना आए। मंच के सामने की जगह को आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक बार खाली कर दें, थोड़ा सा व्यवस्था बनाएं, उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मंच की भी थोड़ी सी व्यवस्था बनाए। मेरा सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट, आप सभी से प्रार्थना है कि सहयोग करें और मंच के सामने भी थोड़ी सी व्यवस्था बनाए ताकि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें। थोड़ा सा मंच के सामने थोड़े और हमारे साथी, हमारे सम्मानित खड़े हैं, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। और अभी मैं इस प्रोग्राम, मैं सभी से गुजारिश करूंगा, एक बार जोरदार उद्घोष करेंगे। मैं बोलूंगा नेता नहीं, आपने बोलना है बेटा। नेता नहीं है भाई। गन्नौर गांव से बाहर भी आवाज नहीं गई, जोरदार आवाज लगानी है, सोनीपत तक जानी चाहिए। हमारा इलाका बहुत बड़ा है। ये नेता नहीं है, एक बार और मजा आ गया। नेता नहीं है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले नारों के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और उसके बाद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और दोनों हाथ उठाकर पूरे जोश के साथ आपको नारे लगाने हैं, और ये गूंज गन्नौर के कोने कोने में जानी चाहिए और सबको पता लग जाना चाहिए कि अब की बार इस गन्नौर की जनता ने ठान लिया कि इस गन्नौर की तस्वीर बदलेगी और भेदभाव की राजनीति खत्म होगी। दोनों हाथ, एक बार ये युवा साथियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, पीछे हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग कुछ सम्मानित बैठे हैं, इनको समस्या ना आए। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि मंच के सामने की जगह को खाली कर दें, साइड में खड़े हो जाएं। सभी युवा साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी व्यवस्था बनाएं। पीछे हमारे कुछ सम्मानित बैठे हैं, उनको परेशानी हो रही है, आप आगे खड़े हो जाते हैं, थोड़ी सी व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। दोनों हाथ उठाकर सभी से मेरा अनुरोध है, पिता तुल्य बुजुर्गों से, मातृ शक्ति युवा साथियों से, सभी से अनुरोध है, दोनों हाथ उठाकर जोश के साथ नारे लगाने हैं। भारत माता की, और जोश दिखा दीजिए, भारत माता की। अभी थोड़ा सा जोश अपने भाई, अपने बेटे को भी दिखा दीजिए और ये बता दीजिए कि ये गन्नौर की सारी जनता, 36 बिरादरी, सारे व्यापारी भाई सभी देवेंद्र कादियान के साथ हैं और सबने ठान लिया कि अब की बार जीत सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की होगी। और अब की बार इस गन्नौर के अंदर नेता नहीं, सिर्फ बेटा चुना जाएगा। जोश से आपको बोलना, मैं आपको बोलूंगा, देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो, आपको जोश के साथ हाथ उठाकर बोलना है, हम आपके साथ हैं। और गूंज इतनी होनी चाहिए और वो आवाज भी दिल से निकलनी चाहिए, गूंज भी इतनी हो कि आपके भाई, आपके बेटे के रोम रोम को महसूस हो जाए कि गन्नौर की 36 बिरादरी, ये गन्नौर की जनता इनके साथ है। पूरे जोश के साथ बोलना है, देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो और जोश दिखाइए। महसूस होना चाहिए इनके रोम रोम को कि गन्नौर की जनता इस बेटे के साथ है। देवेंद्र कादियान आप आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा दीजिए। आपने इतना भारी संख्या में आकर अपने भाई, अपने बेटे को इतना मान सम्मान, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार दिया, इससे इनकी ताकत मिली। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे बीच में अंकित जी मौजूद हैं, वो आगे की कार्यवाही संभालेंगे। अंकित जी, आप सभी, हेलो, आप सभी से निवेदन है कि आप जोरदार जयकारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बड़े भाई देवेंद्र कादियान जी, भाई ऐसा लगा कि भाई किसी मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ हो। इतना जोरदार स्वागत, कमाल है भाई। आपका सहयोग और आशीर्वाद देख करके तो ये लग रहा है कि ये चुनाव एक तरफा है। हमारे बीच में
मेरे पिता तुल्य कृष्ण गोयल जी हैं। 20 साल से हमारे इनके पारिवारिक संबंध हैं। आज देवेंद्र भाई को आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। 11,000 रुपए की माला से उनका स्वागत कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो आए। हमारे बीच में सुरक्षा है, सफाई कर्मचारी है। भाई साहब का 1100 रुपए से मान सम्मान करिए। देखो भाई, सफाई कर्मचारी है नगर पालिका में, 1100 से स्वागत भाई। बोल दिया भाई। मैं रानी भाभी को भी मंच पे बुलाना चाहूंगा कि कृपया एक बार वो मंच पे आ जाएं। भाई प्रिंस मुदगिल, जो कि अभी कुछ दिन पहले भाई साहब के साथ जुड़े हैं, वो कुलदीप शर्मा के साथ चलते थे लेकिन भाई साहब के साथ जुड़े हैं। उन्होंने देखा 5100 रुपए की माला से आज उन्होंने स्वागत किया है। भाई तालियां हो जाए भाई। मैं डिम्पी मल्होत्रा और शालू वधवा से निवेदन करूंगा कि वो आए। 51,000 रुपए की माला से रानी काद्यान जी का स्वागत कर रहे हैं। भाई तालियां को कंजूसी मत करो भाई। भाई तालियां बजाते रहो। दिनेश अदलखा जी जो हमारे एक्स चेयरमैन रहे, उनसे मैं निवेदन करता हूं मंच पर आए। हरीश कौशिक जी और सदाराम जैन जी, इन सभी से हमारे सम्मानित हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आए। हम भाई एक मिनट, हमारे बीच में आजाद जी हैं। देखिए, चाय की दुकान है इनकी। पिछले 15 साल से हमारी दुकान में ये किराए पर दुकान है इनकी, और आज भाई साहब का 2100 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। भाई देख लो भाई, इनका प्यार देखो भाई लोगों का। हमारे बीच में गांधीनगर फाटक पार कॉलोनी से आदरणीय शमशेर अंकल जी पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो अपनी टीम के साथ आए और भाई साहब का 5100 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। जो गांधीनगर फाटक पार कॉलोनी से आए हुए हैं, कृपया एक बार ही आ जाएं। शमशेर अंकल यार आओ ना, तुम आओ ना, तुम सारे यार बोल दो उनके नाम बोल दो ना, नाम बोल दो। ये आगे आप बोलो भाई। आ जाओ सारे, आ जाओ सारे भाई, आ जाओ। हेलो सारे भाई, फाटक पार वाले यहाँ आ जाओ। रामफल काद्यान जी मेरे बड़े भाई हैं। कृष्ण पांचाल है और फोरमैन है, ये मेरे से बड़े भाई हैं। कृपा करके आओ। भाई साहब को बता दूं कि गांधीनगर फाटक पार कॉलोनी से 3 बस भर के लाए हुए हैं। ये 3 बस। भाई जोरदार तालियां बजाते रहें। हो गया, अभी आगे करो बस, हो गया। एक मिनट हो जाए। ये बोलेंगे 1 मिनट। दादा बोलो कुछ। भाई आ जाओ। जितने भाई फाटक पार से आए हैं, भाई देवेंद्र जगह
तहे दिल से स्वागत करेंगे, जता के गालेंगे भाई ने। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। जोरदार तालियां हो जाए एक बार अंकल जी के लिए भी और इस गन्नौर की जनता के लिए भी जो जिन्होंने इतना प्यार समर्थन अपने बेटे अपने भाई को दिया है। अब की बार तो निश्चित है कि गन्नौर के अंदर नेता नहीं बेटा चुना जाएगा। जोरदार तालियां। अनीता वर्मा कितने से? 1100 से। अनीता चलो बुलाओ। अरे ये पापा का नाम दे दे। 21 हो गए। बोलो बोलो बोलो। ये 1100 की है। ये 2 माला 11। ये साथी युवा साथी कुछ हमारे सम्मानित फिर मंच के थोड़ा सा व्यवस्था बना लें। हमारे कुछ पितातुल्य बुजुर्ग हैं, हमारे पिता समान बुजुर्ग हमारे सामने बैठे, इनको दिक्कत ना आए। युवा साथियों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी सी व्यवस्था बना लें। ये जैन सालाब, ये 36 बिरादरी जो यहां पर इकट्ठा हुई, सारे व्यापारी भाई आए, सफाई कर्मचारी आए, हर किसी ने अपने बेटे अपने भाई को भरपूर प्यार आशीर्वाद दिया है। इनको एक नई ऊर्जा मिली है, एक नई ताकत मिली है और ये ताकत ये ऊर्जा सिर्फ आपकी सेवा में लगाई जाएगी। एक बार और अपने भाई बेटे का हौसला बढ़ा दीजिए। ये तालियों की गूंज इस समाज सेवी को ताकत देने का काम करती है, ऊर्जा देने की काम करती है। अभी मैं अंकित जी से अनुरोध करूंगा आगे की कार्रवाई लगातार रखें। श्री सावरिया परिवार सेवा समिति से हमारे भाई राजेश चौहान जी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे हैं। भाई साहब का स्वागत करेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो जल्दी अपनी टीम के साथ मंच पर आएं। राजेश चौहान जी पगड़ी पहना के भाई साहब का स्वागत करेंगे। भाई तालियों में कंजूसी मत करो भाई, जोरदार तालियां बजती रहें। ये पगड़ी का मान सम्मान हरियाणा की पवित्र भूमि में सबसे बड़ा मान सम्मान माना जाता है। और ये जो पगड़ी सरदारी की पगड़ी है, चौधर की पगड़ी, आप सबने मिलकर अपने बेटे अपने भाई के सिर पे रखी है और ये बेटा भी आपकी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएगा और इस गन्नौर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी सम्मानित सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करते हैं जो आपने अपने बेटे अपने भाई को इतना प्यार, इतना समर्थन, इतना आशीर्वाद दिया, काबिले तारीफ है। मैं एक बार निवेदन करूंगा रानी भाभी से, कृपया एक बार वो मंच पर आएं। पवन जी जैन जी हमारे बीच में मौजूद हैं, वो भी पगड़ी के साथ अपने भाई का मान सम्मान बढ़ाना चाहते हैं। उनसे भी अनुरोध करता हूं। हमारे बीच में अनीता वर्मा जी हैं, वो 1100 रुपए की माला से भाभी रानी कादियान जी का स्वागत कर रही हैं। सभी से मैं निवेदन करता हूं थोड़ी मंच पे व्यवस्था बना के रखें। आपका अपना ये प्रोग्राम है, कार्यक्रम है और मंच के सामने जो साथी हैं उनसे भी मैं अनुरोध करता हूं कि व्यवस्था बना के रखें। आप ये जो प्यार मान सम्मान जो आशीर्वाद अपने भाई बेटे को दे रहे हो, ये गन्नौर की 36 बिरादरी का, हर वर्ग का, हर समाज का। भाई पवन जैन जी देवेंद्र भाई का पगड़ी पहना के स्वागत कर रहे हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। हमारे बीच में अनीता वर्मा जी हैं जो कि जेजेपी पार्टी से हल्का अध्यक्ष थी, आज वो देवेंद्र भाई को अपना आशीर्वाद देने के लिए पहुंची हैं। उनका जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन।
1100 रुपए की माला से रानी भाभी का स्वागत कर रही हैं। दोनों भाभी का। भाई आप भी आ जाओ भाभी, जोरदार तालियां भाई। दलबीर जैन जी जो हमारे योगेश भाई के पिताजी हैं वो मंच पर हैं, 2100 रुपए की माला से भाई देवेंद्र कादियान जी का स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच में शुभम गोयल जी हैं, वो 11,000 रुपए की माला से देवेंद्र भाई का स्वागत कर रहे हैं। भाई स्वागत करने वाले हैं इतने, क्या करें, स्वागत तो कराना ही पड़ेगा ना। शुभम गोयल जी, जोरदार तालियां भाई। अब हमारे बीच में आदरणीय हमारी आंटी जी संतोष आर्य जी हमारे बीच में हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वो आएं और अपना आशीर्वाद दें। संतोष आर्य जी। जोरदार तालियां भाई दलबीर जैन जी के लिए, 2100 रुपए की माला से स्वागत कर रहे हैं। हाँ जी। ओम ओम बोलिए भारत माता की। हाँ हाँ नहीं, ओम। हाँ जी हाँ जी भाई जोर से बोलेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आइए, आपके क्षेत्र में आप बहुत देर से सुन रहे हैं भाई देवेंद्र जी के बारे में, आपको सब कुछ पता है मेरे भाइयों। कितने सालों से ये निस्वार्थ भाव से सेवा करता जा रहा है देवेंद्र। तो ये 2-4 लाइनें मैंने इनके लिए लिखी हैं जितना मैं जानती हूं। भाइयों और बहनों, भरा नहीं जो भाव से, भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं पाषाण है वो स्वदेश का जिसमें बोलो प्यार नहीं। जिस हृदय में अपने देश के लिए प्यार नहीं होता वो हृदय नहीं होता, वो पाषाण होता है। आइए, ये 2-4 लाइनें मैंने अपने दिल के उद्गार इसमें लिखे हैं। देवेंद्र का ध्यान को अपना देकर वोट सफल करना, गांव बजाने वाला है यो नेता नहीं ये बेटा है, नेता नहीं ये बेटा है। देवेंद्र का ध्यान को अपना देकर वोट सफल करना, गांव बजाने वाला है ये नेता नहीं ये बेटा है, नेता नहीं ये बेटा है। अपनी गन्नौर में लोगों का बन गया दिल का चहेता ये, अपनी गन्नौर में लोगों का बन गया दिल का चहेता ये। सिर पे हाथ धरो इसके मजदूर किसान व्यापारी भी, सिर पे हाथ धरो इसके मजदूर किसान व्यापारी भी। देवेंद्र का ध्यान को अपना देकर वोट सफल करना, गांव बजाने वाला है ये नेता नहीं ये बेटा है, नेता नहीं ये बेटा है। और सेवा का जनून है इसमें, सेवा का जनून है इसमें, करके काम दिखा देगा। एक बार भाई मौका दे दो, हल्के ने चमका देगा। एक बार भाई मौका दे दो, हल्के ने चमका देगा। देवेंद्र का ध्यान को अपना देकर वोट सफल करना, गांव बजाने वाला है ये नेता नहीं ये बेटा है, नेता नहीं ये बेटा है। और क्या कहा?
माता बहना की कदर करे यू, माता बहना की कदर करे यू, सबकी आंखों का तारा, युवा दिलों की धड़कन है, युवा दिलों की धड़कन है यू, बड़े बुजुर्गों का प्यारा, गाँव बजाने वाला यू, गाँव बजाने वाला यू, नेता नहीं ये बेटा है, देवेंद्र कादियान को अपना देकर वोट जिताना है। और शिक्षा, शिक्षा और रोजगार की लोगों, शिक्षा और रोजगार की लोगों, झड़ी कसूती ला देगा, निस्वार्थ सेवा बिजली पानी घर घर में पहुंचा देगा, निस्वार्थ सेवा बिजली पानी घर घर में पहुंचा देगा। कमल के फूल पे बटन लगाओ, कमल के फूल का बटन दबाओ, कर दो जय जयकार तुम, गांव बजाने वाला है यो, नेता नहीं ये बेटा है, नेता नहीं ये बेटा है। और इसमें क्या खासियत है भाइयों, सुख दुख में ये साथ है रहता, सबके सुख दुख में शामिल होता है, सुख दुख में ये सबका साथी, आधी रात का गहना है, ईमानदार है सेवादार है, जन जन का ये कहना है, देवेंद्र कादियान को अपना देकर वोट जिताना है, गांव बजाने वाला है ये, गांव बजाने वाला है। तो भाइयों क्या कहा, जननी जने तो भक्त जन, जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। तो भाइयों और बहनों ये कहने की बात नहीं, आप सब देखते हैं सब कुछ फ्री, सब कुछ आपको फ्री दिखाई देता है। बाजार में जब जाते हैं रिक्शा जाती है, देवेंद्र फ्री, रिक्शा फ्री, बस फ्री, एम्बुलेंस फ्री। और हरिद्वार में गए, यहां पर बैठे होंगे लोग, 6 बसें गई, थोड़ी थोड़ी गई हैं, 6 बसें, जाना फ्री, आना फ्री, खाना फ्री, रहना फ्री, सोना फ्री, सब कुछ फ्री, स्कूटी फ्री, लैपटॉप फ्री, और पता नहीं क्या क्या फ्री। तो भाइयों अब आगे आप ही सोच लेना, मैं क्या कहूं, सारे कह रहे हैं है ना। एक बार अगर मौका दे दो तो क्या बिगड़ेगा, अगर नहीं पसंद आएगा फिर बदल दियो, ये तो थारे हाथ में है, किसी और के हाथ में थोड़ी है, फिर बदल देना। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और बोलूंगी, बोलिए भारत माता की। और दूसरी बात भाइयों, बहुत सारे युवा जो भाई कादियान का दायां हाथ है, पर मैं सबके नाम तो नहीं जानती, ये भाई अंकित और भाई हरीश वधवा, और भी मेरे भाई जो अभी मंच को संचालन कर रहे थे, और भी मेरे बहुत सारे भाई, मैं नाम नहीं जानती, माफी मांगूंगी, ये नाम नहीं जानती किसी का। तो इतना मैं कहूँ दायां हाथ है इनका, आगे आगे रहते हैं, अपना काम धंधा छोड़कर इनके आगे आगे। तो भगवान करे ऐसे ऐसे साथी सबको मिले। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आंटी जी का। अब मैं निवेदन करूंगा, हरियाणा पंजाबी स्वाभिमान मंच के हमारे प्रधान दीपक बजाज जी हमारे बीच में हैं, कृपया वो भी आएं और अपने विचार रखें। मंच पर विराजमान छोटे भाई, हमारे देवा वेलफेयर सोसाइटी के करता धरता अध्यक्ष और गन्नौर की आन बान और शान, और लगभग गन्नौर के होने वाले एमएलए मेरे छोटे भाई देवेंद्र कादियान मंच पर विराजमान, उनको सदैव अपना आशीर्वाद देते हुए, सदा उनका साथ देते हुए, अपने आशीर्वाद की वर्षा
उनके सिर पर सदैव करते हुए आदरणीय बुजुर्गगण, उनके साथीगण और मेरे साथी की असली ताकत दूर दूर से आए हुए, गांव से आए हुए, शहर से आए हुए, इतनी गर्मी में पसीना बहाते हुए भी 7 बजे से 6:30 बजे से सामने बैठे हुए मेरे इस भाई की असली ताकत आप सब लोग। साथियों, समय बहुत कम है, आदेश हुआ है 2 या 3 मिनट में अपनी बात करनी है, तो मैं सिर्फ एक बात 2 मिनट की करके अपनी वाणी को विराम दूंगा कि लगभग 15-20 दिन पहले की बात है, इधर उधर आना जाना होता है तो किसी ने मुझसे पूछा कि भाई गन्नौर में आजकल क्या चल रहा है। मैंने कहा भाई गन्नौर में आजकल देवेंद्र कादियान चल रहा है। कहने लगे भाई गन्नौर कादियान नहीं, मेरा मतलब यह था कौन सी पार्टी चल रही है। मैंने कहा भाई गन्नौर में देवा पार्टी चल रही है। कहते यार वो मतलब नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूं जेजेपी चल रही है, कांग्रेस चल रही है या बीजेपी चल रही है। तो मैंने उसको सिर्फ 1 मिनट की एक कहानी सुनाई। साथियों, हमेशा मेरे दृष्टांत रामायण या महाभारत से होते हैं। महाभारत की एक छोटी सी दृष्टांत मैंने उसको सुनाया। मैंने कहा भाई इसी से समझ लेना कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में एक संवाद हुआ। कृष्ण जी ने अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए उससे कहा कि अर्जुन, ये सामने पेड़ पर मुझे लगता है कबूतर बैठा है। अर्जुन ने 1 सेकंड नहीं लगाया, कहता है हां प्रभु कबूतर है। भगवान ने कहा कबूतर नहीं, मुझे तो ये बाज लग रहा है। अर्जुन कहता है हां बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, ये बाज है। कृष्ण जी ने फिर कहा नहीं ये बाज भी नहीं है, ये चील है। अर्जुन कहता है हां बिल्कुल ठीक है, चील है। अब श्री कृष्ण जी से ना रहा गया, उन्होंने कहा मैं जो कहता हूं तू वो कह देता है, तेरी अपनी आंखें नहीं है क्या, ये क्या चीज है। कहता है प्रभु ना मैंने बाज से कुछ लेना, ना मैंने चील से कुछ लेना, ना मैंने कबूतर से कुछ लेना, मैंने तो जो कुछ लेना है वो आपसे लेना है। आप जो चाहोगे ये वो हो जाएगा। तो साथियों, ये जो जेजेपी, ये कांग्रेस, ये बीजेपी, ये फलाना, ये ढिमकाना, आज इन सब लोगों की मैं देखते हुए शक्लों से ये कह रहा हूं, अभी अनाउंसमेंट भी हो रही थी कि कोई कांग्रेस से आ रहा है, कोई जेजेपी से आ रहा है। ये सब साथी देवेंद्र भाई को देख करके आ रहे हैं। अरे हमने न बीजेपी से कुछ लेना है, ना हमने कांग्रेस से कुछ लेना है, ना हमने जेजेपी से कुछ लेना है। अपने इस क्षेत्र के लिए अगर हमने लेना है तो हमने देवेंद्र भाई से लेना है, हमने इस देवेंद्र कादियान से लेना है। देवेंद्र कादियान, देवेंद्र कादियान। साथियों, कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आदेश हुआ है कि 2 ही मिनट में अपनी बात करनी है, तो एक बात और कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं। साथियों, कि आप जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, सभी के हृदय में, सभी के मन में कुछ ना कुछ कहने के लिए है। सभी की अपनी भावनाएं हैं। किसी ने अपनी वाणी से, किसी ने गा करके, किसी ने फूलों से और किसी ने नोटों की माला से अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए हैं। मैंने जो कुछ भी कहा है वो आप सभी लोग कहना चाहते हैं। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूं कि जब हम किसी के प्रति सम्मान रखते हैं, किसी के प्रति अपना प्रेम रखते हैं, तो उस प्रेम को और सम्मान को दर्शाया भी जाता है। और भाई के प्रति प्रेम और सम्मान दर्शाने के लिए सिर्फ एक ही चीज हम लोग कर सकते हैं, और वो ये है कि मैं बोलूंगा देवेंद्र कादियान और आप जिंदाबाद का नारा इतनी जोर से लगाएंगे कि माइक फीके पड़ जाएंगे। देवेंद्र कादियान, देवेंद्र कादियान। धन्यवाद साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद बजाज साहब, काफी अच्छे आपके विचार हैं और जोश हैं। दीपक भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा बड़े भाई हरीश वधवा जी से कि वो भी आएं और अपने विचार रखें। मंच पर उपस्थित गन्नौर के दिलों की धड़कन, नेता नहीं बेटा के नारे को जो पूरा चरितार्थ कर रहे हैं भाई देवेंद्र कादियान जी, मंच पर उपस्थित गन्नौर के गणमान्य अतिथिगण, बुजुर्गों, माताओं, नौजवान साथियों, बहनों और प्यारे बच्चों, आज यह अपार जन समूह यहां पर देखकर मन गदगद हो रहा है। आप सभी का यहां पहुंचने पर स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और यह अपार जन समूह इस बात का संकेत है, हेलो, यह अपार जन समूह इस बात का संकेत, हेलो, यह अपार जन समूह
इस बात का संकेत है कि पूरा गन्नौर विधानसभा का प्रत्येक मतदाता इस बार भाई देवेंद्र कादियान को चंडीगढ़ भेजने का मन बना चुका है। किसी के मन में यह प्रश्न उठता हो कि देवेंद्र कादियान ही क्यों, कि देवेंद्र कादियान में ऐसी क्या खासियत है कि हम उनको वोट डालें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक अच्छे राजनेता में जो जो भी गुण होने चाहिए वो सारे गुण मेरे छोटे भाई में हैं। एक राजनेता को सबसे पहले ईमानदार होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, उसकी इंटीग्रिटी होनी चाहिए। भाई के अंदर पूरी ईमानदारी है, क्योंकि जमीन से उठकर जो इंसान जिसने पूरी मेहनत करके जो आज यहां तक पहुंचा है, तो उसकी रग रग में अच्छे संस्कार हैं और पूरी ईमानदारी से वो अपना कार्य कर रहे हैं। परिस्थिति कितनी भी विपरीत या कितनी भी कठिन भी क्यों ना हो, एक अच्छा नेता अपने सिद्धांतों से समझौता कभी नहीं करता। यह खूबी है मेरे भाई देवेंद्र कादियान में। दूसरी खूबी जो एक अच्छे नेता में होने चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति वो जुनूनी होना चाहिए। मैंने अपनी जिंदगी में आज तक इससे ज्यादा जुनूनी नेता, इससे ज्यादा जुनूनी व्यक्तित्व मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। अपने लक्ष्य के लिए वो अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं और कहते हैं कि जब कोई इंसान पूरी शिद्दत के साथ अपने लक्ष्य के लिए कार्य करता है, तो पूरी कायनात उसके लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसका साथ देती है और पूरी कायनात हमारे इस भाई का साथ देगी इनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए। एक अच्छे नेता में गुण होना चाहिए कि अपने छोटे बड़ों के लिए उसके मन में सम्मान होना चाहिए। आप क्या कहते हैं? देवेंद्र भाई जब वहां से आ रहे थे, एक एक भाई के चरण छूकर अपना आशीर्वाद ले रहे थे, अपने नौजवान साथी को गले लगकर उनकी शुभकामनाएं ले रहे थे। बच्चों ने अगर माला पहनाई तो बच्चों को वो इतना प्यार दे रहे थे। एक नेता में ये गुण होना चाहिए और वो गुण मेरे भाई में है। एक गुण और होना चाहिए नेता में कि नेता को आलोचना सुनने के लिए तैयार रहना चाहिए। मेरा भाई हमेशा, मैं कई बार साथ होता हूं, अगर कोई उनकी छोटी सी कोई गलती बताता है कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो, उसको बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी पेशेंस से, धैर्यपूर्वक उसकी बात सुनते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आगे से वो गलती ना हो। तो वो गुण भी हमारे भाई देवेंद्र कादियान में है। और जो सबसे बड़ा गुण है, एक नेता को जनता की भलाई के लिए हमेशा कार्य करना चाहिए। उसके लिए मुझे कहने की जरूरत नहीं है, मुझसे पहले कितने वक्ता बता चुके हैं कि देवेंद्र भाई ने गन्नौर के लिए अब तक क्या क्या किया है। एम्बुलेंस की बात करूं, 10 एम्बुलेंसें विभिन्न संस्थाओं को भेंट की हुई हैं। स्कूटी की बात करूं, बच्चों को प्रोत्साहित करने की बात करूं, ई रिक्शा की बात करूं, कितने इनके गुण गिनवाऊं, सबने उससे पहले वक्ता गिनवा चुके हैं। ये सारे गुण देवेंद्र भाई में हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप देवेंद्र भाई को 1 अक्टूबर को उनको वोट दें और बटन दबाकर देवेंद्र भाई के लिए उनको वोट देकर चंडीगढ़ का रास्ता उनके लिए बनाएं, ताकि वो गन्नौर का विकास और गन्नौर का स्वर्णिम इतिहास लिख सकें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप देवेंद्र भाई को 1 अक्टूबर को भारी मतों से विजयी बनाकर उनको विजयी बनाएं और उनका सहयोग करें और उनको चंडीगढ़ पहुंचाकर गन्नौर के लिए एक भविष्य तैयार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बड़े भाई हरीश वधवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं भी 2 मिनट के लिए अपने कुछ विचार रखना चाहता हूं भाई देवेंद्र कादियान के लिए। देखिए, अगर हम देश की बात करें तो हमारे देश में गारंटी चल रही है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर गारंटी चल रही है हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की, और अगर हम गन्नौर की बात करें तो गन्नौर में गारंटी चलेगी भाई देवेंद्र कादियान की। यह गारंटी कोई 5-10 साल की गारंटी नहीं है, यह कोई फ्रीज कूलर की गारंटी नहीं है, ये एक्सपायर हो जाएगी।
ये उम्र भर की गारंटी है। गारंटी है आपके मान सम्मान की, गारंटी है आपके सुख दुख में खड़ा रहने की, गारंटी है गरीब आदमी की मदद करने की, गारंटी है गन्नौर में भेदभाव ना करने की, गारंटी है गन्नौर को चमकाने की, गारंटी है युवाओं को रोजगार देने की। लेकिन आज आपने भी इस भाई को गारंटी दे करके जानी है कि भाई इस चुनाव में भारी बहुमत से भाई को विजयी बनाओगे या नहीं बताओगे? भाई बता दो भाई, गारंटी दे दो इस बात की। भाई आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे बीच में संजय मित्तल जी, वतन जैन जी, बाबू अरोड़ा जी और पारस अरोड़ा जी, भरत पाहुजा जी, आशीष जैन जी, दिनेश सक्सेना जी, हर्षित पाहुजा जी, हिमांशु प्रजापत जी, ये पगड़ी पहनाकर अपने सभी ये युवा साथी देवेंद्र कादियान जी का गन्नौर मंडी आने पर उनका स्वागत करेंगे। इस युवा साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और बाकी वक्ताओं से भी मेरा अनुरोध है समय सीमा का ध्यान रखते हुए हम इस कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं, क्योंकि अभी देवेंद्र कादियान जी भी अपने विचार हम सबके बीच में रखेंगे। वक्ता बहुत हैं, सबके दिल में बहुत सारी बातें हैं, सबके दिल में अपने भाई अपने बेटे के लिए प्यार है, लेकिन समय सीमा का ध्यान रखते हुए हमारी मजबूरी है कि भाई समय ज्यादा हो गया, सबको घर भी जाना है। तो सबसे वक्ताओं से भी मेरा अनुरोध है कि प्रोग्राम और भी होंगे, उनमें सभी को समय भी दिया जाएगा। और ये युवा साथियों ने जो पगड़ी के साथ मान सम्मान किया, मैं सभी युवा साथियों का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। उसके बाद पहले बिटिया की बेटे का बर्थडे है, मैं बुला रहा हूँ। आज हमारे भाई सभी से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। आज छोटे भाई अंकित मल्होत्रा की बिटिया का जन्म दिवस है। बिटिया भी सिर्फ 20 सेकंड के लिए कुछ कहना चाहती है। चेष्टा मल्होत्रा, बिटिया से अनुरोध है। चेष्टा मल्होत्रा कृपया मंच पर आ जाएं। हाँ बोल दिया, बोल। बिटिया का आज जन्मदिन है। आप सभी के आशीर्वाद की बिटिया को जरूरत है और वो 20-25 सेकंड के लिए कुछ अपनी बात कहना चाहती है। चेष्टा मल्होत्रा। आज मेरा बर्थडे है। मैं आप सब लोगों से कुछ गिफ्ट मांगना चाहती हूँ। क्या आप सब लोग मुझे देंगे क्या? अपने हाथ खड़े करके बताएं। थैंक यू। आने वाले 1 अक्टूबर को मेरे ताऊ जी देवेंद्र कादियान जी को भारी वोटों से विजयी बनाएं। जोरदार तालियां हो जाए बिटिया के लिए। यही मेरा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी बेटी को वो जीवन में काफी तरक्की करे। और एक गुड़िया, एक बच्ची है जो साक्षात दुर्गा का रूप है। उन्होंने एक गिफ्ट आपसे मांगा है, तो आप भी दिल से बिटिया को गिफ्ट देना। अभी भाई देवेंद्र भाई, एक वक्ता और हैं, निवेदन कर रहे हैं बार बार, आप थोड़ा समय कम ले लेना। लेकिन और प्रोग्राम कोई नहीं, 2 मिनट बुलवा दो। उसके बाद चलो कोई अंकल 2-3 मिनट इससे ज्यादा नहीं बोल लूंगा। जल्दी बोलो ना। सम्मानित मंच, यहां पर आए हुए बुजुर्ग, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबको हाथ जोड़कर नमन वंदन करता हूं। इसके पश्चात देखिए, यहां वक्ता मेरे से पहले लगभग सारी बातें कह चुके हैं, तो मेरे लिए इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने एक कोशिश की है, एक कविता के माध्यम से सुनना उसको, और ध्यान से सुनो, ध्यान से।
जो आस्तीन के सांप बने उनके फन कुचले जाएंगे, सीने में जिनके जहर भरा अब वे दिल बदले जाएंगे। राजनीति में जहर खोल दे, कम किसी को ज्यादा तोलते, जो बद जुबानी करते हैं नहीं पैर जमी पे धरते हैं, जो इंसानी नहीं जानते सही बात को नहीं मानते, मजहब का जो जहर घोलते, पाकिस्तानी भाषा बोलते, सांसों में बदबू भरी पड़ी, पंगु हाथों में लिए छड़ी, जिनको देश नहीं बाता, जिनको परिवेश नहीं बाता, जो वंदे मातरम नहीं गाएंगे, उनके फन कुछ ले जाएंगे, उनके फन कुछ ले जाएंगे। और मैं प्राण पद पढ़ रहा हूं, मैंने छोड़ दिया है बहुत सारा। मेन बात सुनियो जरा ध्यान से। जो संसद में बकवास करें, जो चाइना में आवाज करें, जो हिंदुओं को गाली देते, जो देशद्रोहियों से फंडिंग लेते, जो भारत में गदर फैलाते हैं, जो स्विस बैंक में जाते हैं, जो 8500 खट करके जो लोगों को भरमाते हैं, कभी पादरी पंडित बनते, कभी मुस्लिम बनकर हैं तनते, जो देश नीलाम करवाते हैं, जो लोगों को मरवाते हैं, जो देशद्रोहियों से मिलकर हिंदुओं को भरमाते हैं, उनके फन कुचले जाएंगे, उनके फन कुचले जाएंगे। जो चंद रुपयों की खातिर जूतों पर नाक रगड़ते हैं, जो हिंदू होकर भी हिंदू से गद्दारों के लिए झगड़ते हैं, जो अपने बाप को नंगा कर माता का चीर हरण करते, जो केवल पैसों की खातिर गुलामी स्वीकार वरण करते, जो गौओं के हत्यारे हैं, जो गद्दारों को प्यारे हैं, जो गौ मांस को खाते हैं, जो हमको आंख दिखाते हैं, जो पत्थरबाजी करते हैं, कुत्तों की भांति मरते हैं, जो लाल किले पर चढ़ करके कितना उपद्रव मचाते हैं, जो वचन तोड़ गद्दारी करके भारत को नाच नचाते हैं, जो चीन कनाडा में आकर सीधे साधों को भरमाते हैं, जो हमारे ही भाइयों को भाइयों से मरवाते हैं, उन गुंडों की क्या बात करें जो लोगों को लड़वाते हैं, जो कहने मात्र के हिंदू हैं, जो कहने मात्र के हिंदू हैं। देखिए बहुत है, लंबी है कविता। अब उनके फन कुचले जाएंगे, अब उनके फन कुचले जाएंगे। और साथियों एक बात मैं कहता हूं, ये हमारा बेटा, हमारा भाई देवेंद्र कादियान है, इसको भारी बहुमत से जिताएं और रिकॉर्ड तोड़ जीत यहां पर हासिल होनी चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं सभी वक्ताओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, समय बहुत ज्यादा हो गया, कभी किसी दूसरे प्रोग्राम में सभी को मौका दिया जाएगा, क्योंकि अभी 50 वक्ताओं की लिस्ट मेरे पास है। सभी से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि अभी हम सिर्फ देवेंद्र कादियान जी के विचार सुनेंगे। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ज्यादा समय हो गया, अभी कुछ मजबूरियां हैं समय को देखते हुए। अभी हमारे बीच में हरीश वधवा जी, अंकित मल्होत्रा जी, कृष्ण जी की प्रतिमा देकर भाई साहब का मान सम्मान बढ़ाएंगे। कल जन्माष्टमी का दिन है, लड्डू गोपाल जी का जन्म कल के दिन हुआ था। एडवांस में सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां हो और भगवान श्री कृष्ण की दया दृष्टि आशीर्वाद इस गन्नौर की जनता पे बना रहे, हमारे भाई पे बना रहे और ये इस गन्नौर की जनता की सेवा ऐसे ही करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अभी समय सीमा का ध्यान रखते हुए प्लीज अभी समय सीमा का ध्यान रखते हुए मैं देवेंद्र कादियान जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और अपने विचार हम सबके बीच में रखें। एक बार जोरदार तालियों के साथ अपने बेटे, अपने भाई का हौसला बढ़ाएं। देवेंद्र कादियान जी अपने विचार हम सबके बीच में रखें। देवेंद्र भाई को जय श्री राम। देवेंद्र भाई को जय श्री राम। कादियान जीतेगा। जय हिंद, जय भारत। भाई देवेंद्र कादियान जी।
नहीं यार। अभी 2 नारे लगाने हैं आपको, और उन पहले नारे में और दूसरे में, और जरूरत पड़ी तो तीसरा, ये आवाज पहले पानीपत, फिर अंबाला, फिर चंडीगढ़। भारत माता की। ये तो घरोंडा तक गई है। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। सबसे पहले हमारी मातृशक्ति, हमारी माता बहनें बहुत संख्या में आई हैं, और कल भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार है। सबसे पहले मैं अग्रिम बधाई देता हूं अपनी बहनों को, यहां पर पहुंचे सभी सम्मानित व्यक्तियों को, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को। भगवान श्री कृष्ण आपके घर में ढेर सारी खुशियां लाए, आप सबका व्यापार खूब आगे बढ़े, आपके बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़े और कामयाब हों, ऐसी भगवान कृष्ण से कामना करता हूं। आज मेरे पास न शब्द हैं न लफ्ज हैं। ये नौजवान साथी जो मेरे साथ खड़ा है, एक मेरा छोटा भाई है, एक बड़ा है, अंकित मल्होत्रा और हरीश वाधवा। ये केवल यहां माइक में बोलने से या इस मंच पे बोलने की बात नहीं है। हमेशा मुझे एक अपना छोटा भाई मान के, एक बड़ा भाई मान के, जैसे सगा भाई होता है उस तरीके से मुझे ताकत देने का काम करते हैं, मुझे आगे बढ़ाने का काम करते हैं, हिम्मत हौसला बढ़ाने का काम करते हैं। जब भी मैं किसी बात को लेके डगमगा जाता हूं तो मुझे संभालने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे सम्मानित चेहरे, ऐसी ऐसी मूर्तियां यहां बैठी हैं। मेरे हाथ में तो शायद कोई 25-30 नाम लिखे हुए हैं सम्मानित हमारे शहर के सभी व्यक्तियों के, लेकिन यदि सबका, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे चेहरे हैं जिनको मैं बहुत सालों से स्वयं अच्छे से परिचित हूं, जानता हूं। हमेशा जैसे मैंने कहा इन दोनों भाइयों का, ये सारे चेहरे भी हमेशा, चाहे दिन हो, रात हो, बारिश हो, आंधी तूफान हो, हमेशा ये चेहरे सारे मेरे साथ खड़े रहते हैं। बड़े भाई हमारे गन्नौर नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन, फिलहाल वाइस चेयरमैन दिनेश अदलखा जी पहुंचे हैं। एक बार ये देखो खड़े हो गए। स्वास्थ्य लंबे टाइम से सही नहीं था, लेकिन छोटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे, और परमात्मा का लाख लाख बार शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे भाई काफी दिन बीमार रहे, लेकिन आज इनके चेहरे की चमक बताती है कि चुनाव में अपने छोटे भाई के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हमारे अंकल सुरेश बत्रा जी, प्रीतम आहूजा जी, भाई दीपक बजाज जी, नंदलाल छाबड़ा जी। भाई अंकित कम दिखने लगे आजकल, तूने तो चश्मे लगा रखे, मैंने तो नहीं लगा रखे। धर्मवीर कौशिक जी, खन्ना साहब का बताओ ना। नारायण दास खन्ना जी, हर्ष अरोड़ा जी, पवन जैन जी, हरीश मदान जी, लाला प्रेमचंद गोयल जी, राम प्रसाद जैन जी, परवीन गोयल जी, कृष्ण जैन जी, सुदर्शन जैन जी, शिव नारायण गुप्ता जी, अजय कौशिक जी, लाला मंगल मित्तल जी, देशबंधु जी, नरेंद्र वर्मा जी,
तरुण चुग जी, अशोक मल्होत्रा जी, नीरज जग्या जी, मुकेश बत्रा जी, श्यामलाल गोयल जी, सुभाष गोयल जी, हमारे भाई संजय मित्तल जी, लाला सादाराम जी। ये सुनील लंबू का इतने बीच में क्यों कर दे रखे? आड़े इससे बात में चिंगर जाएगा किससे? हमारा भाई सुनील लंबू भाई, मन नहीं लिखा। सुरेश बत्रा जी, ओम प्रकाश जोगी जी, ओम प्रकाश जैन जी, योगेश जैन जी, मास्टर विजेंद्र जी, संदीप कश्यप जी, शुभम गोयल जी, दलवीर नैन जी, परवेश मदान जी, परवीन कामरा जी, अमित भाई बत्रा जी, सुरेंद्र जाग्या जी, राकेश जैन जी, विजेंद्र जैन जी, संदीप भाई XMC, राजेंद्र गोयल जी, अनिल शोरान जी, नरेंद्र जैन जी। ये देखो ईश्वर कश्यप जी का भी लास्ट में लिखा हुआ है। हमारे नगर पालिका के पूर्व चेयरमैन ईश्वर कश्यप जी, और एक हमारी बड़ी बहन अनीता वर्मा जो जेजेपी पार्टी से आज हमारे छोटे भाई को आशीर्वाद देने पहुंची है, भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने आस्था दिखाई है। और एक हमारी मातृशक्ति संतोष जी, जिन्होंने एक सुंदर कविता से मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे अंदर ऊर्जा का संचार किया, उनको भी नमन है। वो हमेशा मेरे को आशीर्वाद देते हैं, एक एनर्जी देते हैं, पॉजिटिव एनर्जी उनसे मिलती है। हरविंदर त्यागी हमारे साथी MC हैं, बैठे। गुलिया साहब का हो गया, सुरेंद्र भाई का आ गया, हरीश वाधवा जी का भी। चलो, फिर भी मैं इनका सबका छोटा भाई हूं, किसी का गलती से रह गया होगा मुझे पता है, वो मुझे माफ कर देंगे। मेरे कागज पे जो लिखा था वो मैंने पढ़ दिया। देखिए, वैसे तो वहां बैठ के मैं सोच रहा था कि शायद आज मेरे लिए कुछ बचा नहीं बोलने के लिए, और बाद में मेरे कान में यह भी बोल दिया गया कि आपको थोड़ा बोलना है। इसलिए कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, सारे अपने व्यापारी भाई हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, हमारी मातृशक्ति है। और मंच से सारी बातें हो गई। ये जो टीवी चल रहा है LED, इसमें भी बहुत सारी चीजें आपने देखी, मंच के माध्यम से भी बहुत सारी चीजें आपने सुनी। लेकिन मैं कहता हूं, हो सकता है इस LED टीवी में कोई चीज बढ़ा चढ़ा के दिखा दी हो, 19 को 21 कर दिया हो, या हमारे साथियों ने मेरे प्रेम में, प्यार में 2-4 कसीदे ज्यादा पढ़ दिए हों। लेकिन मेरे समक्ष जो गन्नौर की जनता बैठी है, हमारे सभी सम्मानित व्यक्ति बैठे हैं, 8.5 साल में आपने मेरे भाव देखे हैं, मेरी भावना देखी है, मेरे विचार देखे हैं। और मैं समझता हूं आज जो इतना आशीर्वाद मिला है इन सभी भाइयों का, और ये जो शहर की ऐसी ऐसी मूर्तियां बैठी हैं जो न केवल चुनाव की दिशा तय करती हैं, वो समाज में भी हर तरीके की भूमिका निभाती हैं, जिससे गन्नौर में हमारा भाईचारा और बहुत सारी सामाजिक चीजें चलती हैं। सारा मंच, वो सब मंच बैठा है। ये सब आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, आप लोग आए हैं, तो मुझे लगता है जो मेरे भाव हैं वो आप तक जरूर पहुंचे। भाव क्या है? भाव मेरे ये है, मुझे गन्नौर को एक नया गन्नौर बनाना है, एक नवीन गन्नौर बनाना है, एक सुंदर गन्नौर बनाना है। गन्नौर के अंदर क्या क्या चीजें नई होनी चाहिए, किससे गन्नौर सुंदर बनेगा, कौन सी चीज कहां लगानी है, कहां से सजानी है, उन सारी चीजों का मेरा नया गन्नौर है। बहुत सारे सम्मानित हमारे पार्षद साथी, बहुत सारे वार्डों से कुछ लोग मेरे पास आते हैं। गन्नौर में सबसे बड़ी
यदि मेरी नजर में कोई समस्या है तो हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो सीवर लाइन का जो सिस्टम खराब है, वो सबसे बेकार है, जिसकी वजह से हमारी सड़कें बहुत ज्यादा टूटी रहती है। आज तक जितने भी प्रतिनिधि आए, जितने भी लोग आपने चुन के भेजे, मेरा ये मानना है कि सबने वहां पर उसको ढकने का काम किया, केवल नाम मात्र काम चलाऊ काम किया और ये वेट किया, छोड़ो फिर देखेंगे। जो ओरिजिनल काम होना चाहिए, जो हमारे शहर के बारिश का पानी कहां जाना चाहिए, कौन सी ड्रेन में जाना चाहिए, इस बारे में आज तक किसी ने भी सीरियस काम नहीं किया। हमारे शहर में जाम की स्थिति रहती है। बाईपास, प्रपोज्ड बाईपास कागजों में आया है, लड़सोली गांव से शुरू होके हमारे गन्नौर से ऊपर होके आपका ललेड़ी से गुमड़ गांव से होके पांची गुजरान जाके उसका मैप हमने देखा है, जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो अभी तक केवल मैप में है, नक्शे में है, जमीन पे नहीं। मैं समझता हूं यदि गन्नौर को सपनों का गन्नौर बनाना है और सुंदर गन्नौर बनाना है, एक नया गन्नौर बनाना है, तो सबसे जरूरी काम यह भी है नया बाईपास, ताकि हमारे शहर के सारे कमर्शियल व्हीकल बाहर से जाएं, शहर के अंदर सिर्फ शहर की गाड़ियां आए। और बाईपास बनने से शहर की सुरक्षा के लिए शहर के चारों तरफ यदि हमारे चेक पोस्ट लगाई जाए, हर चारों कोने पर हर गाड़ी की जानकारी हो, रात को कि भी कौन सी गाड़ी आ रही है, कौन सी जा रही है, तो सभी चौराहों पे पुलिस की गश्त हो, सुरक्षा के कार्य किए जाएं। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर पब्लिक टॉयलेट नहीं है। हमारे शिव पार्क पे हम आगे जाते हैं, सब्जी मंडी के पास, और कई जगह पर हम गन्नौर गांव में जाते हैं, स्कूल के पास, जीटी रोड के पुल के नीचे, हमारा रेलवे स्टेशन के बाहर की साइड, यहां पर पब्लिक टॉयलेट की जरूरत है, वो जो नहीं बनी आज तक। चाहे वो मोबाइल पब्लिक टॉयलेट ही क्यों ना हो, लेकिन वो पब्लिक टॉयलेट चाहिए। हमारे देश में कितने रेलवे स्टेशन जिनका नवीनीकरण हुआ है, नए बने हैं, लेकिन आज भी हमारा रेलवे स्टेशन वैसा का वैसा पुराना है। हमारा बस स्टैंड देखो, इतनी अच्छी जगह पे है, इतने मौके की जगह पे है, लेकिन जर्जर हालात में। तो यदि, क्योंकि मुझे थोड़ा बोलने के लिए बोला गया, इसलिए मैं बताना चाहता हूं, मेरे जो सपनों का, ये एक बच्चा किसी का मिस हुआ है, एक बार कोई इसके पेरेंट्स हैं तो उसके कृपा करके यहां से ले जाएं। बस ठीक है, बैठो। तो मैंने बताया हमारा नया गन्नौर और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें करने की हैं, वो सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी। समय कम है, मैं आज आपके बीच में एक अपील करना चाहता हूं। चुनाव है 1 अक्टूबर का, 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, और आपके बीच में पिछले 8.5 साल से आपका भाई, आपका बेटा आपके बीच में रहा है। आपने हमारी संस्था के माध्यम से कार्य देखे हैं। भारतीय जनता पार्टी में मैं सक्रिय कार्यकर्ता हूं, और मुझे अपनी पार्टी पे गर्व है कि इस पार्टी में ऐसे ऐसे चेहरे हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं। वहां जो पीछे आप ये बैकड्रॉप देख रहे हैं, मोदी जी से लेकर, और वो जो लास्ट में एक फोटो है, हमारे जिले का जिलाध्यक्ष है जसवीर दोदवा, नौजवान साथी है, जिले का जिलाध्यक्ष है, एससी समाज से आता है। ये जितने भी फोटो मंच पे लगे हैं, एक एक फोटो आम परिवार से, गरीब परिवार से निकले हुए व्यक्ति हैं। आज देश का नेतृत्व कर रहे, चाहे आदरणीय मोदी जी हों, चाहे हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हों हमारे मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी हों, चाहे योगी आदित्यनाथ हों, यूपी के मुख्यमंत्री,
चाहे हाल ही में हमारे प्रदेश के मुखिया पार्टी के बड़े भाई मोहनलाल बड़ोली जी को, ये सारे वो चेहरे हैं, वो व्यक्तित्व हैं जो आपके जैसे परिवारों में से निकल के, आम परिवार से गरीब परिवार के निकल के वहां शिखर तक पहुंचे। ये भारतीय जनता पार्टी, ऐसी पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं और इस बात की मुझे बहुत खुशी है। एमएलए की टिकट तो शायद कुछ घंटों में अनाउंस होगी, कल हो जाए, परसों हो जाए, रात को हो जाए, लेकिन आपने शायद अपने भाई को आज टिकट दे दी। ये भी एक छोटी बात नहीं है। जो मेरा शहर, मेरे सम्मानित जितने भी व्यापारी सम्मानित जो मंच पे बैठे हैं, आज टिकट अनाउंस होने से पहले ही मुझे आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे हैं, मेरा ताकत बढ़ाने के लिए पहुंचे। देखिए, मंच से आपने सारी बातें सुनी, हमने छोटे छोटे काम किए, दुकानदारी की, आज रेस्टोरेंट का व्यवसाय है, मन्नत ग्रुप के नाम से सब जानते हैं। लेकिन एक बात आपके बीच में रखना चाहता हूं। चलो ठीक है भाई, मैं समाज सेवा में हूं और एक राजनीतिक दल से आता हूं, लेकिन मैं एक व्यापारी भी हूं। आज सारे व्यापारी भाई बैठे हैं, एक अपने मन की बात करना चाहता हूं, एक बात अपने मन की करना चाहता हूं, क्योंकि चुनाव चल रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता घूम रहे हैं, वो नेता घूम रहे हैं जिनको आपने 10 साल मौका दिया और 5 मिला ले तो 15 साल, 15 साल आपके बीच में हैं। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अपनी दुकान दोबारा जमाने के लिए इस चुनाव में 3 तरीके के भाषण लेके आए। उन्होंने गन्नौर को 3 भागों में बांटा है। गन्नौर शहर को अलग रखा है और जो हमारे लाइन से उस तरफ का गन्नौर विधानसभा है उसको अलग रखा है, और जो हमारी यमुना की बेल्ट है खदरा, उसको अलग भाषण देते। मैं उसके बारे में 2-3 मिनट में चर्चा पूरी करूंगा। यह बहुत गहरी और सुनने की बात है। यदि वो कांग्रेस का नेता रेलवे लाइन से उस तरफ के गांव में जाता है तो उसका भाषण सिर्फ एक ही बात पे केंद्रित रहता है कि भाई चौधरीओ, अपनी चौधर लेके आओ, अपना मुख्यमंत्री बनाओ, मेरा नेता ये, मेरा नेता वो। केवल और केवल वहां जाके भोले भाले किसानों को बेवकूफ बनाता है चौधर के नाम पे। ये नहीं कहता कि भाई पिछली बार मेरी दुकान बंद हो गई थी, अब की बार दोबारा मेरी दुकान खुलवा दो। सिर्फ बोलता है चौधरी साहब अपना सीएम बढ़ाओ, अपनी चौधर ले आओ। लेकिन कई जगह पर हमारे बुजुर्ग उसको टोक देते हैं कि नेताजी आपकी सुन ली, चौधर वाली भी बात भी सुन ली, सीएम वाली भी सुन ली, आपका नेता फलाना आदमी है ये भी सुन लिया। लेकिन एक बात तो बताओ, जो आप नेता कह रहे हो भाई मेरा नेता, वो नेता 5 साल पहले यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने आया था, एमपी का चुनाव। यहां पर एमपी का चुनाव लड़ने आया था 5 साल पहले, और आप कह रहे हो कि वो मेरा नेता है। आपने तो उसकी गोभी खुदवा दी, उसको हरवाया, उसको हरवाने का काम किया। शहर में जिन लोगों का हाथ पकड़ के कहते हो कि भाई गन्नौर शहर के नगर पालिका में सिर्फ यही चेयरमैन रहेंगे और हर बार यही बनेंगे, उन लोगों ने तो आपकी पार्टी का बूथ भी नहीं संभाला, कोई बूथ पे एजेंट भी नहीं पाया। जिस नेता के नाम पर भोले भाले किसानों को बेवकूफ बनाते हो, उस नेता को हरवाने का काम आपने किया। ये सारा मंच बैठा है, जिस आदमी का हाथ पकड़ कर कहता है कि नगरपालिका में सिर्फ चेयरमैन बनने का यही आदमी
हकदार है, जिसमें आपने जो खेल देखा ना, कोई पार्टी की सीमाएं, एक नेता दूसरी पार्टी का, एक नेता दूसरी पार्टी का, और शहर में कौन सा खेल खेला था वो आपके आंखों के सामने है। और जब वो बड़ा नेता लड़ रहा था तो वहां जाके देखो गन्नौर गांव की तरफ उनके बूथों पे एजेंट भी नहीं थे, सारे के सारे दूसरी जगह पे थे, उनको जवाब मिलता है। दूसरी बात जो बहुत गौर करने वाली बात है, शहर में, मंडी में, बाजार में वो नेता बैठता है हमारे व्यापारियों के साथ और बोलता है कि लाला जी, सेठ जी, देख लेना कहीं गुंडों का राज ना आ जाए। मैं सच कह रहा हूं, बेबाकी से बता रहा हूं, सम्मानित मंच भी सुन रहे हैं। वो बोलता है व्यापारियों के बीच में जाके कि भाई साहब देख लेना कहीं गुंडों का राज ना आ जाए। एक बार हाथ उठा के बताओ, क्या आपका भाई गुंडा दिखता है? जिस आदमी ने फुटपाथ पे सब्जी बेची हो, हर दुकानदारी का अनुभव जिसमें हो, एक छोटे होटल से लेके आज उत्तर भारत की सबसे बड़ी चेन है वेजिटेरियन फूड की मन्नत ग्रुप, क्या इतना बड़ा व्यापारी बन सकता है? कोई व्यापार को इतने आगे ले जा सकता है? इसलिए उसको जवाब देना है कि भाई 8.5 साल में तो कोई गुंडा नहीं सुना। यो 1 महीने का जब सीजन आ गया चुनाव का, जब तक हमारा भाई, हमारा बेटा गुंडा दिखता है, उससे जवाब लेना है। हर जगह बोलता है, ये कोई चुनावी बात नहीं है। शहर में मेरे को बहुत सारे मेरे सम्मानित हमारे चाचा, हमारे अंकल बोलते हैं, बेटा एक काम करो, अपनी गाड़ी में 3-4 बुजुर्गों को रखा करो। मैं कहा जी क्या हुआ? नहीं नहीं, वो जगह जगह बोलता घूम रहा है कि भाई इसके साथ तो नौजवान लड़के। मैं आपको बोलना चाहता हूं, ये बातें कोई नेता नहीं बोलेगा, ये बेटा ही बोल सकता है। मेरी गाड़ी में एक विक्रम है जो गाड़ी चलाता है, मेरा ही साथी ड्राइवर है। एक सुभाष रोइला है, उम्र होगी 55 साल, सारा शहर जानता है, मैक्सिमम वो रहता है। एक आध बार एक भाई है संजय, उसकी भी उम्र 52-53 साल है। ये गाड़ी में 4-5 फिक्स आदमी रहते। वो ठीक है कि भाई मैं हमारे खंडके वाले बुजुर्ग नहीं रखता, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बुजुर्ग को पूरा दिन गाड़ी में लेके घूमूंगा, वो बेचारा उम्र दराज है, परेशान होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या केवल मेरे पास तो कोई बुजुर्गों की कोई कमी नहीं, मैं तो बिठा लूंगा, क्या केवल ये फॉर्मेलिटी करने से मेरा चेहरा बदल जाएगा? क्या केवल खाना पूर्ति करने से, केवल खाना पूर्ति से करने से क्या आपका बेटा, आपके भाई का चेहरा बदल जाएगा? क्या मेरी गाड़ी में जो भी रहते हैं, जो मेरे साथ चलते हैं, सारे सभ्य लोग हैं, सारे पारिवारिक लोग हैं। ये केवल चुनावी बातें हैं, ये केवल चुनावी बातें। मैंने कहा, मेरे को बोलते हैं, हरीश भाई साहब ने भी बोला कि भाई साहब कोई नहीं, कुछ बुजुर्गों को रखो। मैं कहा रख लेता हूं। पिछली बार बाजार में कार्यालय का उद्घाटन था, आप यकीन मानना और मेरी बात सुन के आप हैरान हो जाओगे कि यार ये वास्तव में ही बेटा है, ये बेटा ही ऐसी बात कर सकता है। मैंने उस कार्यक्रम के लिए कम से कम 500 फोन किए, 500 कॉल की। किस बात की? जगह जगह पर कॉल किए, भाई आज शहर का कार्यक्रम है, आप मत आना। मैंने कॉल की कि आज शहर का कार्यक्रम है, आप कृपया करके आप भी मत आना, आप भी मत आना, आज केवल शहरी भाइयों का कार्यक्रम है। मैंने रोका। क्यों रोका? क्योंकि मेरे बारे में ये अफवाह फैलाते हैं कि गांव के लोग दिखते हैं, वो दिखते हैं। केवल यदि फॉर्मेलिटी के तौर पे मैं बुजुर्गों को गाड़ी में बिठा लूं, क्या वो सही है? भाई 24 घंटे में से हम 16-17 घंटे पब्लिक में रहते हैं, कितने बुजुर्गों को बदलूं, कितने बुजुर्गों को गाड़ी में घुमाऊं? मेरे से फॉर्मेलिटी नहीं होती। बुजुर्ग तो ये सारे बैठे, तैयार बैठे हैं, कह देंगे बेटा हमने बिठा लिया कर। तो ये बात समझनी है, इस प्रचार को रोकना है। भाई वो व्यापारी है। मेरी बेटी देखो कॉलेज में ये बीए कर गई, कब तक मैं ये रहूंगा? बेटी मेरी बीए कर गई तो मैं कौन सी श्रेणी में हूं? ये बात समझने की। तो उन लोगों को समझाना है कि भाई ये सारी चुनावी बातें हैं। इस आदमी को हमने 8.5 साल देखा है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बुजुर्ग भी मेरे साथ रहते हैं, मेरी माता बहनें भी रहती हैं, नौजवान भी रहते हैं।
जब मेरे दिल में, मेरी आत्मा में ये गन्नौर की सेवा के भाव हैं, तो क्या बदलेंगी ये चीजें? क्या फर्क पड़ता है? कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरा जो असली चेहरा है, जो मेरा असली रूप है, वो जो आपके सामने 8.5 साल है, मेरे को सिर्फ एक बात का जुनून है कि गन्नौर चर्चा का विषय बने, लोग यहां आए, यहां से वीडियो में फोटो वीडियो बना के लेके जाएं कि गन्नौर में जो काम होता है वो पूरे हरियाणा में कहीं नहीं होता। हर चीज यहां आधुनिक हो। मैं अपने मोबाइल में कहीं दूसरे स्टेट में जाता हूं, मैं पीछे केरला में गया, एर्नाकुलम में, वहां की वीडियो बना के लेके आया। ड्रेनेज सिस्टम पे जो जाल लगता है कि नया मॉडर्न जाल कैसा लगना चाहिए ताकि दुकानदार भाइयों को कोई परेशानी ना हो। स्ट्रीट लाइट की मैं वीडियो बना लेता हूं बाहर से। बहुत सारी चीजों को अपने मोबाइल में कैद करके लेके आऊंगा। जब मुझे मौका मिलेगा तो ये सारी चीज गन्नौर में लगाऊंगा। तो इसलिए अब अंकित भी भाई बोल रहे, कान में ज्यादा बोल गए, ये मेरी भावनाएं थी। ये जो प्रचार है, आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, इस प्रचार को रोकना है। ऐसे लोगों की बोलती बंद करनी है जो कहता है कि गुंडा है। व्यापारी कभी गुंडा नहीं हो सकता। जो इतना बड़ा व्यापार चला सकता है वो कभी भी गुंडा नहीं हो सकता। हमारे पड़ोसी हैं, सुखदेव ढाबे वाले अमरीक जी है, गुलशन भाई है, वो मंगला जी का ढाबा है, आहूजा जी का ढाबा है। एक बार जरा पूछ के देखो ना, कहेंगे हमारे दिन रात का हमारा साथी है, 24 घंटे खड़ा रहता है हमारे साथ, हमारी मदद करता है। तो इतनी सारी चीजें हैं। थोड़ा लंबा बोल गया, उसके लिए माफी चाहूंगा। मेरी भावनाएं थी और इन सारी चीजों का अपने भाई और अपने बेटे की लड़ाई लड़नी है। इस गन्नौर को बदलना है, गन्नौर को नया गन्नौर बनाना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ गलती से कुछ मेरे से निकला हो तो उसके लिए माफी। मेरी अपनी भावनाएं थी, मैंने वो आपके बीच में सारी दिल की बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी संख्या में आए। आप सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्रसाद लेकर के जाएं, बिना प्रसाद लिए कोई भी ना जाए। हमारी आंटी रोशनी जी रह गई थी, 2100 रुपए की माला से हमारी भाभी रानी काद्यान जी का स्वागत कर रही हैं। मैं भाभी को कहूंगा कृपया एक बार आए। तो फूल देवेंद्र का, अरे चमके गन्नौर का छतरियो वसूल देवेंद्र का। अरे चमके गन्नौर का छतरियो वसूल देवेंद्र का। सारी खावे यो गाम गाम में हो जाऊंगा फूल देवेंद्र का। अरे चमके गन्नौर का छतरियो वसूल देवेंद्र का। अरे चमके गन्नौर का छतरियो वसूल देवेंद्र का। Come on.